Hello students, good morning. Welcome to SAS Online Classes. Students, we were reading chapter 4, the river bank of our English literature book as we started. In our last video, our topic was subject and predicate. So students, we have read about subject and predicate in our last video and included this topic subject and predicate. We have also read and solve exercise G. Circle the subject and underline the predicate in each of these sentences, which is page number 34 of this chapter 4 in our English literature book as we started in our last video. And students, we have also read and solve exercise. I have answered the following questions of this chapter 4 in our Fair English literature notebook in our last video. Okay, so since we have solved exercise D and exercise F of this chapter 4 in our last video, and since today's our topics are single vowel sound, which is page number 34, and our next topic is tongue twisters, and next favorite animal, and next sentences, and last activity of this chapter 4. Okay, and included these topics vowel sound, tongue twister, favorite animal, sentences, and activity. We will solve exercise A, which is page number 34, exercise B, which is related to our first topic vowel sound, and which is also in page number 35, and next exercise C and exercise D and composition and activity. Okay, so students, today we will solve all these exercise and activity of this chapter 4 in our today's class. Okay, so all students pay special attention to class and listen to my words. Firstly, we are going to read and solve exercise A, which is page number 34. Okay, so all students look at the page number 34. Language lab. Okay, it's mean bhasha prayogshala. Language means bhasha, lab means prayogshala. Okay, let's see exercise A. Your exercise A is listen to these words and notice how two vowels combine to make a single vowel sound. It's mean listen to these words. It mean इन शब्दों को सुनिए. ओके, एंड मीन्स और नोटिस मीन्स ध्यान दीजिए. हाउ टू वॉवल्स कंबाइंस टू मेक अ सिंगल वॉवल साउंड. इट्स मीन कि कैसे दो स्वर मिलकर एक स्वर ध्वनि बनाते. ओके, इट्स मीन इन शब्दों को सुने और ध्यान दें कि कैसे दो स्वर दो स्वर मिलकर एक स्वर बनाते. ओके, कि कैसे दो स्वर मिलकर एक स्वर ध्वनि बनाते, एक स्वर ध्वनि को क्रिएट करते, एक स्वर ध्वनि को बनाते. ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली लेट्स सी टू वॉवल लेटर्स डबल ई. ओके, so your first number word is beep. Okay, so beep, students, we can see that here are two स्वर हैं यहाँ पे, दो स्वर हैं, टू वॉवल लेटर से डबल ई. ओके, इन दिस वर्ड बीप. ओके, इस वर्ड बीप में टू वॉवल लेटर्स है ना. ओके, डबल ई है ना, बट हेयर ओनली वन वॉवल साउंड. ओके, बीप ओनली ई साउंड कर रहा है. ओके, वन ई ओनली साउंड कर रहा है. ओके, टू ई नहीं. ओके, टू ई है बट यहाँ पे सिर्फ ओनली वन ई साउंड कर रहा है, बीप. ओके, so student, beep means students होता है CT, hooter. Clear? Let's see next word. Your next word is teeth. Okay, so students, we can see that here are two vowel letters in this word teeth, but only one e sound here. Okay, see one sound कर रहा है, only one e sound कर रहा है. Clear? Teeth means दांत. Okay, let's see double o vowel letters. Okay, your first number word is foot. Okay, foot means पैर. Okay, we can see that here are two vowel letters. Two vowel letters है ना, double o, but only one o sound here. Only one o sound कर रहा है यहाँ पे. Okay, foot means पैर. Okay, let's see second word, your hook. Okay, h double o के hook. Here the meaning of hook means हसिया या काटा. Okay, so student, we can see that here are two vowel letters double o, but only one o sound here. Okay, let's see next vowel letters ai. Okay, ai vowel letters वाले words हैं आपके. first है rain. rain means बारिश या वर्षा. Okay, and we can see that here are AI two vowel letters. दो यहाँ पे vowel letters है A and I. Okay, but only and only one vowel letter sound. Okay, rain A sound करे, not I. Clear? And student, your next word is gain. Okay, we can see that here are two vowel letters A and I, but only A sound here, not I. Okay, gain A sound कर रहा है, I नहीं. Clear? Let's see next two vowel letters. Your two vowel letters are E and A. Okay, तो E है, E and A है, but so let's see words which is related to EA vowel letters. Okay, your first number word is speech. Okay, speech. The students, here in this word we can see that there are two vowel letters E and A, but only and only E vowel letter it sound not A. Okay, only E sound करे, A नहीं. Peach. Okay, peach means आडू. Next word is cream. cream means मलाई. cream, we can see that here are two vowel letters E and A, but only E and E sound कर रहे हैं, not A. सिर्फ E और E sound कर रहे हैं, है ना, सिर्फ E sound कर रहे हैं, A नहीं. cream. Okay, E आ रहे हैं ना. ओके, तो E और A टू लेटर्स है, बट जो E और A का जो टू वॉवल लेटर्स का जो कंबाइन है, ये ओनली वन वॉवल लेटर्स का साउंड कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वॉवल लेटर्स आर आई ई. ओके, सो योर वर्ड्स आर, फर्स्ट वर्ड इज चीफ. चीफ मीन्स प्रमुख या मुखिया. ओके, वी कैन सी दैट हियर टू वॉवल लेटर्स आई एंड ई. ओके, आई एंड ई टू लेटर्स है ना, बट जब ये आई एंड ई टू वॉवल लेटर्स एक साथ आ रहे हैं तो इनका जो साउंड होगा तो ओनली वन वॉवल साउंड करेगा, चीफ. ओके, ओनली ई साउंड कर रहे हैं यहाँ पे, आई नहीं. क्लियर? And next word is thief. thief means चोर. Okay,
we can see that here in this word thief, here are two vowel letters I and E, but when I and E are together, when and I and E are राइट टुगेदर, जब हम I और E को एक साथ राइट करें, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा तो ओनली वन वॉवल साउंड क्रिएट करें. ओके, थीव ई केवल साउंड करे, आई नहीं. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वॉवल लेटर्स. ओके, ओ ए विच इज लास्ट. ओके, of this exercise A. So students, your words which is related to OA vowel letters are, your first number word is boat. Boat means now. Okay, we can see that here are two vowel letters O and A. Okay, two vowel letters है ना, but इनका जो combination होगा ना O और A vowel letters का, तो only O sound करेगा, not A. boat. Okay, सिर्फ O sound करे ना. रोम, रोम मीन्स होते हैं घूमना या फिरना. ओके, घूमना, तो रोम, तो ओ ए, ओ और ए टू वॉवल लेटर्स है, बट जब इनका कॉम्बिनेशन होगा ओ एंड ए का, तो ओनली ओ वॉवल लेटर साउंड करे, नॉट ए. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, वी कैन टू से इन सिंपल लैंग्वेज कि जब टू वॉवल लेटर्स, दो स्वर अक्षर जब एक साथ आते हैं ना, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, और अगर उनका कॉम्बिनेशन ओनली वन वॉवल साउंड क्रिएट करे, सिर्फ एक स्वर ध्वनि बनाए, तो उन्हें हम बोलते हैं सिंगल वॉवल साउंड. इट्स मीन एकल स्वर ध्वनि. ओके, जैसे बीप हो गया, टीथ, फूट, हुक, रेन, गेन, पीच, क्रीम, चीफ, थी, बोट, रूम. ओके, तो ऐसे वर्ड्स जिनमें टू वॉवल लेटर्स आए. ओके, टू वॉवल लेटर्स आए एक साथ, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन हो, उनका जो एक कॉम्बिनेशन हो, उनके जो एक साथ हो उनका. ओके, इनका जो एक संयुक्त हो. ओके, वो ओनली वन सिंगल वॉवल साउंड करे, सिर्फ एकल स्वर ध्वनि उत्पन्न करे, उन्हें हम बोलते हैं सिंगल वॉवल साउंड. सो स्टूडेंट, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, सिंगल वॉवल साउंड. ओके, सो स्टूडेंट, लेट्स सी इन दिस ब्रैकेट. डिड यू नो दिस स्पाइडर्स हैव 8 legs? क्या आप जानते हैं कि स्पाइडर्स के 8 legs होते हैं, मकड़ी के 8 पैर होते हैं. वाइल अदर इंसेक्ट हैव 6, जबकि जो अदर इंसेक्ट्स होते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं, उनके 6 होते हैं. ओके, दे कैन बी फाउंड ऑन एवरी कॉन्टेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्कटिका. ओके, तो हम जो ये जो हम इन्हें हर जगह पे पा सकते हैं, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ के. ओके, ये जो इंसेक्ट होते हैं, ओके, इन्हें हम हर जगह पा सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कहीं भी पा सकते हैं, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ के. ओके, अंटार्कटिका में ये नहीं पाए जाते. क्लियर? सो स्टूडेंट, टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड लुक एट दिस एक्सरसाइज बी. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज बी. ओके, नाउ रीड दीज वर्ड्स अलाउड. अब इन वर्ड्स को, इन शब्दों को जोर से पढ़िए, देन राइट द वॉवल साउंड. ओके, उसके बाद आपको वॉवल साउंड को राइट डाउन करना है, ए आई ई ई ओ ओ आई ई ई ए ओ ए, इन द ब्रैकेट बिसाइड देम. इन द ब्रैकेट में, कोष्टक में, बिसाइड देम मीन्स उनके पास के. ओके, उनके पास के जो कोष्टक है उनमें राइट डाउन करना है. नाउ रीड दीज वर्ड्स अलाउड, देन राइट द वॉवल साउंड ए आई ई ई ओ ओ आई ई ई ए ओ ए इन द ब्रैकेट्स बिसाइड देम. इट्स मीन कि अब आपको क्या करना है कि ये जो वर्ड्स है ना, ये जो शब्द है, इन्हें आपको बोलना है. ओके, इन्हें आपको रीड करना है, बोलना है. अलाउड मीन्स जोर से. ओके, कि अब इन शब्दों को जोर से रीड करना है, पढ़ना है, और फिर उनके बगल वाले कोष्टकों में स्वर ध्वनियाँ ए आई ई ई ओ ओ आई ई ई ए ओ ए. ओके, लिखिए. पहले वर्ड्स को रीड करना है, फिर जो इनके बिसाइड में जो ब्लैंक्स है ना, इनके बिसाइड में जो ब्रैकेट्स है, उनमें हमें इनके वॉवल साउंड को राइट डाउन करना है. लेट्स सी फर्स्ट नंबर पढ़िए. फर्स्ट नंबर वर्ड इज बेट. ओके, तो बेट. ओके, सो स्टूडेंट, रीड दिस वर्ड विथ मी. बेट, ए आई साउंड करें ना, तो स्टूडेंट राइट डाउन हियर बिसाइड दिस वर्ड बेट. ओके, इस वर्ड के बिसाइड में जो ब्रैकेट है ना, उस पर राइट डाउन करिए ए आई. क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड. योर नेक्स्ट वर्ड इज बुक. ओके, बुक, तो स्टूडेंट्स बुक, दिस word book have double O vowel sound. Okay, so students write down here in this second number blank beside this word book double O. Clear? Let's see next word. Your next word is moon. Okay, this word moon have O A vowel sound. Okay, so students write down here in this blank, in this third number blank beside this word moon O A. Okay, ये जो word है moon, इसके जो beside पे जो bracket है, okay, उस पर क्या राइट डाउन करेंगे, ओ ए लेटर्स राइट डाउन करेंगे. क्लियर? and let's see next number word. Your next 4 number word is chain. Okay, so chain, this word chain have ai sound. Okay, ai sound रख रहा है, ai vowel sound रख रहा है, तो send write down here in this 4 number blank beside this word chain ai. Okay, इस word chain के पास में जो bracket है, उसके पास में ai write down करिए. Clear? Your next word is hook. Okay, so stand hook, this word hook have double o vowel sound. Okay, so stand write down here in this fifth number in this fifth number bracket beside this word hook double o. Okay, ये जो hook का जो word है, इसके beside पे जो bracket है ना, उस पर double o write down करिए. Clear? Let's see next word. Your next word is chief. Okay, so stand chief, this word chief have I is vowel sound. Okay, so stand write down here in this 6 number bracket beside this word chief I E. ये जो word है chief, इसके beside में जो bracket है ना, यहाँ पे I E write down कर लिया. Clear? Your next word is speak. Okay,
peak, this word peak have ea vowel sound. So student write down here in this bracket beside this word peak ea. Okay, इसके beside में ये जो word है peak, इसके beside के जो bracket है उस पे ea write down करिए. और next word is toast. Okay, toast, this word toast have oa letters. Okay, oa sound रख रहा है, oa vowel sound. ये write down here in this bracket beside this word toast oa. Okay, ये जो word है toast, इसके जो beside जो bracket है उस पे oa write down करिए. Your next word is meek. Okay, so students meek, this word meek have double e vowel sound. So students write down here in this blank beside this word meek double e. Okay, double e यहाँ पे write down करिए. Okay, because this word meek have double e vowel sound. Clear? Your next word is bead. Okay, which is last word, okay, of this exercise B. Your last word is bead. Okay, so student this word bead have ea vowel sound. Clear? So student write down here in this bracket beside this word bead ea. ये जो word है ना bead जो word है इसके जो नियर पे इसके जो beside पे जो bracket है ना उस bracket पे आप क्या write down करेंगे ea. Clear? So students your exercise B have completed, and I hope you must have understood this exercise B. Our first topic has completed. Okay, we have read our first topic single vowel sound, and I hope you have no problem in this first topic single vowel sound. Okay, now we are going to solve exercise C. Your exercise is listen to these tongue twisters carefully, then cross the wrong words out and write the correct ones above them. Okay, it's mean कि क्या करना है आपको, लिसन टू दीज टंग ट्विस्टर्स केयरफुल. केयरफुल मीन्स ध्यानपूर्वक. टंग ट्विस्टर्स मीन्स स्टूडेंट होता है बोलने में कठिन शब्द या जल्दी जल्दी बोले गए शब्द. ओके, इन टंग ट्विस्टर्स को, इन बोलने में कठिन शब्द को या जल्दी जल्दी बोले गए शब्दों को ध्यान से सुनिए. एंड फिर क्या करना है आपको, जो रॉन्ग वर्ड्स है ना, गलत शब्दों को काट कर उनके ऊपर सही शब्द लिखिए. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस. सो फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. आइसक्रीम मैं चिल्लाती हूँ, यू स्क्रीम आप चिल्लाते हैं, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम इट्स मीन हम सब आइसक्रीम के लिए चिल्लाते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स स्क्रीम इट्स अ करेक्ट नॉट. ओके, स्क्रीम करेक्ट वर्ड नहीं है. ओके, इट स्क्रीम इज अ रॉन्ग वर्ड इन दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस एंड फॉर इज आल्सो रॉन्ग वर्ड. ओके, सो स्टूडेंट्स कट स्क्रीम, सेकेंड स्क्रीम एंड थर्ड स्क्रीम एंड लास्ट फॉर. ओके, स्क्रीम को कट करिए जितनी भी स्क्रीम वर्ड्स है इस फर्स्ट नंबर सेंटेंस में. फर्स्ट स्क्रीम, सेकेंड स्क्रीम एंड थर्ड स्क्रीम एंड लास्ट जो फॉर है ना उसे भी कट करिए. ओके, एंड राइट डाउन ईट. ओके, above scream and eat second above scream and eat above third number scream and write down the above this word for. Okay, and then your sentence become I eat, you eat, we all eat the ice cream. It's mean मैं खाती हूँ, आप खाते हैं, हम सब आइसक्रीम खाते हैं. Clear? So students, the wrong words in your first number sentence are scream, फर्स्ट स्क्रीम, सेकंड स्क्रीम, थर्ड स्क्रीम एंड फॉर. क्लियर? तो आपका जो रॉन्ग वर्ड है वो स्क्रीम है और फॉर है. क्लियर? और स्टैंड द करेक्ट वर्ड विच वी हैव राइट इन दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस ईट एंड दी. क्लियर? सो लेट्स सी सेकंड नंबर सेंटेंस. और सेकंड नंबर सेंटेंस इज आई थॉट आई वाज ड्रिंकिंग ऑफ थैंकिंग यू. इट्स मीन कि इट्स मीन कि मुझे लगा कि मैं आपको धन्यवाद देने के लिए पी रही हूँ. ओके, या मीन ऑफ ड्रिंकिंग दैट पी रही हूँ. ओके, तो स्टूडेंट्स रॉन्ग वर्ड्स आर इन दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस आई एंड ड्रिंकिंग. ओके, सो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर यू. ओके, इन प्लेस ऑफ आई को कट करिए, ड्रिंकिंग को कट करिए एंड आफ्टर स्टूडेंट्स राइट डाउन यू above I and write down giving above drinking and then your sentence become I thought you was giving of thanking you. It's mean कि मुझे लगा कि आप धन्यवाद दे रहे हैं. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी थर्ड नंबर sentence. Your third number sentence is Susie works in a shoeshine top when she signs we sits when she sits she signs. Okay, so students wrong words in this third number sentences are top when she signs she sits. Okay, so students cut करिए top when she signs she sits. Okay, and write down shop above the top and write down and okay only आपको shop write down करना है top के above. Okay, top के ऊपर and then your sentence becomes Susie works in a shoeshine. Okay students, आपका जो first number sentence का mean था वो था Susie works in a shoeshine top when she signs she sits when she sits she signs. It's mean कि सुशी एक शू शाइन टॉप में काम करती है. ओके, जब वह पॉलिश करती है, साइन मीन्स होते पॉलिश करना. ओके, जब वह पॉलिश करती है तो वह बैठती है, जब वह बैठती है तो वह पॉलिश करती है. ओके, तो ये जो टॉप वर्ड है और व्हेन सी साइंस और सी सिट्स है ये रॉन्ग है. ओके, तो जो करेक्ट वर्ड हमने राइट डाउन किया है टॉप के प्लेस पे वह शॉप है. ओके, और व्हेन सी साइंस के और सी सिट्स के प्लेस पे हमने कुछ भी राइट डाउन नहीं किया है. ओके, तो then your sentence becomes Susie works in a shoe shine shop. Okay, when she sits she shine. It's mean कि सुशी एक शू शाइन शॉप पे. ओके,
सुशी एक शूज एंड शॉप पे वर्क करती है, ओके। एक जूतों की दुकान पे काम करती है, ओके। और जब वह बैठती है तो वह पॉलिश करती है। क्लियर कि सुशी एक शूज एंड शॉप पे वर्क करती है और जब वह बैठती है तो वह पॉलिश करती है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी 4 नंबर सेंटेंस। 4 नंबर सेंटेंस इज Betty bought a piece of butter, okay, but the butter Betty thought was bitter, okay. So it's mean कि here the mean of the sense कि Betty bought a bar of butter, okay. It's mean कि बिट्टी ने मक्खन की एक पेटी खरीदी, okay, but the bitter piece thought was bitter. It's mean लेकिन मांगी गई मक्खन की बिट्टी कड़वी थी, okay. So students, wrong words in this 4 number sentences are bar, bar, and bitty and sort, sort, okay. So students, cut these words bar, bitty and sorts, okay, and write down piece above bar and write down piece above bitty and write down taste above salt, and then your sentence become Betty bought a piece of butter but the butter piece taste was bitter. It's mean बिट्टी ने एक बटर का टुकड़ा लिया, एक मक्खन का टुकड़ा खरीदा। बॉट इट सेकंड फॉर्म बाई मीन्स खरीदना, बॉट मीन्स खरीदा, ओके। बट द बटर पीस टेस्ट वाज बिटर, लेकिन मक्खन के टुकड़े का स्वाद कड़वा था। बिटर मीन्स कड़वा। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट वर्ड्स आर पीस एंड टेस्ट, ओके। तो हमने बार के प्लेस पे पीस राउट डाउन किया, बार को कट किया, एंड सेकंड हमने क्या किया, बिट्टी को कट डाउन करके उसकी प्लेस पे पीस राउट डाउन किया, एंड लास्ट सॉल्ट को कट करके हमने टेस्ट राइट डाउन किया। क्लियर। सो स्टूडेंट, वी हैव solve this exercise C, and I hope you must have understood this exercise C. You have no problem in any sentence of this exercise C. You have understood this topic tongue twisters, okay. Now we are going to solve exercise D, okay. Exercise D, it's a homework, so we will read this exercise D at last, okay. लास्ट में हम लोग इसे रीड करेंगे, सबसे लास्ट में। क्लियर। सो लेट्स सी कंपोजिशन। लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली। इस पिक्चर को, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। इसे कुछ वाक्यों में इसका वर्णन करिए। देन गिव इट अ सुटेबल टाइटल। इट्स मीन कि फिर उसे एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए, ओके। सो स्टूडेंट, वी कैन सी इन दिस पिक्चर इट्स रिलेटेड टू दी फॉरेस्ट। ये पिक्चर फॉरेस्ट से रिलेटेड है, जंगल से रिलेटेड है, ओके। और स्टूडेंट्स, क्यों जंगल से रिलेटेड? क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स हैं, ट्रीज़ हैं, ग्रास है, ओके। तो एक फॉरेस्ट का सीन लग रहा है। तो स्टूडेंट्स, we will give a suitable title of this picture, the forest. हम इस पिक्चर को suitable title देंगे, the forest, इसमें जंगल, okay. Now we are going to describe in a few sentence, okay. अब हम इसे कुछ sentences में describe करने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर सेंटेंस है there's a forest, okay. एक जंगल है, okay, and there's a big tree, okay. एक बड़ा सा पेड़ है, okay. So students, ट्रीज़ तो यहाँ पे देयर आर मैनी ट्रीज़ है, बट हम ओनली वन ट्री की बात करें जिस पे आउल बैठा हुआ है। क्लियर। तो इसलिए हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है देयर सा बिग ट्री। यहाँ पे एक बिग ट्री है, बहुत बड़ा पेड़ है, ओके। देयर आर ग्रीन घास, यहाँ पे हरी घास है, ओके। वी कैन सी इन दिस पिक्चर देयर आर ग्रीन घास, यहाँ पे ग्रीन घास है, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट। देयर आर एन आउल, अ डियर, अ रैबिट, अ स्क्वारल एंड अ बियर, ओके। यहाँ पे एक उल्लू, एक हिरन, एक खरगोश, एक स्क्वारल, इट्स मीन एक गिलहरी, ओके, एंड अ बियर, एक भालू है। क्लियर। एंड वी कैन सी इन दिस पिक्चर here are an owl, a rabbit, a squirrel and a deer and a bear, okay. तो ये सारे एनिमल्स हैं ना यहाँ पे, एक उल्लू, हिरन और रैबिट, इट्स मीन खरगोश, स्क्वारल मीन्स गिलहरी और बियर इट्स मीन भालू, ओके. सो लेट्स सी next sentence. Your next sentence is there are also a boy and a girl who are talking to ऑल, ओके. यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की भी है जो ऑल से टॉक कर रहे हैं, ऑल से बातें कर रहे हैं. क्लियर. सो स्टूडेंट, वी हैव सॉल्व दिस कंपोजिशन एंड ओके वी हैव डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंस एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. Okay, you have understood this topic, okay, sentences with suitable title. You have no problem in this topic. Now we are going to solve exercise activity, okay. So students, it's your 2 days homework कि solve exercise D and solve this activity. ये आपका homework है, okay. Your exercise D is form groups of 4 and speak about your favorite animal. आपको क्या करना है, 4 ग्रुप में, इट्स मीन 4 के समूह में काम करना है, ओके. क्या करना है, 4 के समूह बनाए, ओके. फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4, 4 के समूह बनाए एंड स्पीक अबाउट योर फेवरेट एनिमल, और अपने पसंदीदा जानवर के बारे में बोलिए. इट कैन बी अ वाइल्ड एनिमल और अ डोमेस्टिक वन, ओके. ये वाइल्ड एनिमल हो सकता है, जंगली जानवर हो सकता है, डोमेस्टिक एनिमल भी हो सकता है. इट्स मीन ये एक पालतू जानवर भी हो सकता है, ओके. तो इट्स योर 2 days होमवर्क दैट कंप्लीट दिस एक्सरसाइज डी. आपको एक्सरसाइज डी कंप्लीट करनी है. आपको 4 के ग्रुप बनाना है, 4 लोगों का समूह बनाना है. अपने पेरेंट्स को ले सकते हैं, अपने सिबलिंग्स को, ब्रदर एंड सिस्टर को ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को ले सकते हैं. 4 का ग्रुप बनाएंगे और अपने फेवरेट एनिमल के बारे में बोलेंगे. फिर वो डोमेस्टिक भी हो सकता है, वाइल्ड भी हो सकता है. लॉयन, काऊ, बियर, ओके, डॉग, पैरट, कोई भी, सॉरी पैरट बर्ड है, ओके. तो जैसे कैट हो,
जैसे लॉयन है, बियर है, हॉर्स है, काऊ है, ओके। तो कोई भी डोमेस्टिक है, डॉग है, तो उसके बारे में आपको बोलना है, क्लियर। तो आज आपका होमवर्क एक्सरसाइज और इससे आपकी एक्सरसाइज एक्टिविटी आपकी है, यू नो दी मोल्स लिव इन अंडरग्राउंड टनल्स। आप जानते हैं कि मोल्स जो होती है वो अंडरग्राउंड टनल्स में रहती है, इट्स मीन ज़मीन के नीचे सुरंगों में रहती है। नाउ फाइंड आउट वेयर अ लॉयन, अ पिजन, अ बी एंड अ रैबिट लिव। अब पता लगाइए कि एक शेर, एक कबूतर, एक मधुमक्खी और एक खरगोश कहाँ रहते हैं। देन हेल्प देम रीच देयर होम्स, ओके। और फिर इनकी मदद करिए, इन्हें उनके घर तक पहुँचाने में, ओके। फिर उन्हें उनके घर तक पहुँचाने में मदद करें, ओके। तो स्टूडेंट्स लॉयन है ना, फिर सेकेंड है पिजन, फिर थर्ड है बी और फोर है रैबिट, क्लियर। और फिर इधर है हाइव, बोरो, नेस्ट और डेन, ओके। तो स्टूडेंट्स लॉयन लीव्स इन, लॉयन रहता है डेन में, गुफा में रहता है, ओके। तो हमें इसका एक वे देंगे लॉयन को उसके होम डेन में रीच कराने के लिए, पहुंचाने के लिए, ओके। सेकेंड है पिजन, तो स्टूडेंट्स पिजन लीव्स इन नेस्ट, पिजन नेस्ट में रहते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, पिजन को एक वे देंगे उसे इसके होम तक पहुँचाने के लिए। एंड नेक्स्ट है बी, बी लिव्स इन हाइव, बी हाइव में रहती है, ओके। हाइव मीन्स छत्ते में रहती है, तो बी को एक वे दे देंगे। रैबिट लिव्स इन बोरो, जो रैबिट होता है, खरगोश होता है, वो बोरो में रहता है, बिल में रहता है, ओके। तो हम उसका भी एक वे दे देंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स लॉयन लिव्स इन डेन, शेर गुफा में रहता है, पिजन लिव्स इन नेस्ट, ओके। कबूतर नेस्ट में रहता है, इट्स में घोंसले में रहता है, बी लिव्स इन हाइव, ओके। मधुमक्खी छत्ते में रहती है। एंड रैबिट लिव्स इन बोरो, जो रैबिट होते हैं, खरगोश होते हैं, वो बिल में रहते हैं। तो उन्हें हमें एक वे देना है, एक रास्ता दे देंगे उनके घर तक पहुँचाने के लिए, क्लियर। So students, today's your classwork is that complete exercise B, exercise C and composition, which is page number 35, okay, in your English literature book as we started. And after students, your homework is that complete exercise D and activity, which is page number 36, okay. It's your today's homework. आपका ये homework है कि आपको exercise D और ये activity complete करनी है, chapter 4 की आज आपका homework है, okay. So students, I hope you must have understood these exercise A, B, C and composition, okay. You have no problem in this exercise and you must have understood your classwork and homework, okay. So all listen, firstly complete your classwork, complete exercise B, C and composition, which is page number 35 of this chapter 4 in your English literature book as we started, okay. So all listen, complete your classwork, complete exercise B, C and composition of this chapter 4 and send me your work here. Thank you.